Hello everyone, my name is Rudraksh and I'm a first year MBA student at IIM Rohtak and मैं पिछले 3 साल से IPMAT के around content बना रहा हूँ and I have interacted with thousands of students in this due course of time and I have seen a common pattern कि every student wants to know what they should do right, which is obviously right, there's nothing wrong in it, but एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मिस कर जाते हैं बच्चे, दैट इज व्हाट दे शुड नॉट डू, व्हाट थिंग्स आर देयर दैट दे शुड अवॉइड. So in this video, I'll be covering top 5 mistakes that every IPMAT aspirant should avoid. Number 1 mistake is ignoring the basic foundations of quants. बहुत सा बारी ऐसा होता है, either there are two cases, either students run toward very advanced, very high level and IPMAT level questions from day one, or they just focus on learning the shortcuts and learning the tricks. यार देखो, अगर if you're running behind कि मैं इस टाइम स्पेस डिस्टेंस के क्वेश्चन के ट्रिक सीख लूंगा, मैं ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन के ट्रिक सीख लूंगा, ट्रस्ट मी एग्जाम सेंटर पे तुम्हें वैसा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है नहीं मिलेगा. सो इंस्टेड फोकस ऑन क्लियरिंग योर फंडामेंटल्स, मेक श्योर दैट ऑल योर फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी क्लियर एंड दे आर razor sharp so that even if advanced level question comes in your exam, तुम्हारे पास पहले से एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है जिसकी वजह से शायद से तुम वो क्वेश्चन एग्जाम सेंटर पे भले तुमने कभी ना देखा हो बट बना लोगे. So make sure that foundation is your key. Your foundation should be very very strong, especially in quants. Many of you who are watching this video are going to appear for IPMAT 2026 and एक बहुत ज़्यादा confusion रहती है कि भैया कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, किसका मटेरियल अच्छा है, किसका नहीं अच्छा है. And for that reason, especially, I would tell you, PW has been in this IPMAT space since 2023 and has produced numerous results. And for that reason, especially, I would recommend you to at least give them a shot. In the IPMAT Master Quest 2026 batch, you will get live lectures with experienced faculty, DPPs, and video solutions, question banks, weekly practice tests, 15 plus mock tests, and 24/7 doubt support. And if you want something better and something new, you can go with IPMAT Pro 2026 batch. This includes everything in the Master Quest batch. Plus, you'll get access to all the batches launched this year and last year, and a set of physical IPMAT books delivered at your doorsteps. In my opinion, I'd recommend you to go with IPMAT Pro 2026 batch because it gives so much flexibility at such a value. And if you use my code RKS500, you'll get an additional discount. So make sure you check them out. The link is in description and comments. अब चलते वीडियो में. The second mistake that a lot of aspirants make is that they underestimate verbal ability. यार every aspirant focuses only on quants. वो quants अगर 8 घंटे दिन में पढ़ रहा है उसमें से 7 घंटे 7.5 घंटे quants पढ़ेगा और आधे घंटे से verbal पढ़ेगा. And at the end of the day or end of their preparation period, जब वो एग्जाम सेंटर से निकलते हैं, they know that यार वर्बल एबिलिटी वो एक सेक्शन रह गया जिसमें शायद से उनका कट ऑफ नहीं मीट होगा, या फिर अगर उनको वहाँ पे भी अंदाज़ा नहीं लगता है, व्हेन द रिजल्ट्स कम आउट दे गेट शॉक्ड कि अरे क्वांट्स के एसए में मेरा सेक्शनल क्लियर हो गया, क्वांट्स के एमसीक्यू में सेक्शनल क्लियर हो गया, बट वर्बल में अभी तक नहीं हुआ. सो दैट इज समथिंग जो हर साल देखता हूँ बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं व्हेन देयर रिजल्ट्स कम कि भैया आई स्कोर्ड सो हाई इन क्वांट्स बट मेरा वर्बल से 1 मार्क्स से कट ऑफ रह गया, 2 मार्क्स से कट ऑफ रह गया. आई डोंट वांट यू टू बी इन दैट सेम बोट. So please ensure that you're studying verbal equally. I'm not saying that if you're studying quant 7 hours, study verbal for 7 hours. I'm just saying that if you're studying quants for 7 hours, at least give 2 hours to verbal every single day. Consistency and showing up every day matters more than the number of hours that you're giving to verbal. So make sure रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तुम डेली सॉल्व कर रहे हो, पैराफ्रेजेस, पैराजम्बल्स ये सब सॉल्व कर रहे हो, एक्सरसाइजेस कर रहे हो और रीडिंग डेली कर रहे हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या आर्टिकल्स ही. द थर्ड मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज नॉट टेकिंग मॉक्स और नॉट टेकिंग इनफ मॉक्स. यार मैंने पता नहीं क्यों ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट देखे जिनको बहुत ज़्यादा ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि भैया मैंने तो सिर्फ 1-2 मॉक लगाया एग्जाम से पहले, हो जाएगा, मुझे मॉक समझ में आ गया कि पैटर्न क्या होता है, कितना टाइम होता है. यार एक चीज़ समझो, सिर्फ पैटर्न और टाइमिंग के लिए नहीं होता. मॉक एक असली एग्जाम का इन्वायरमेंट रेप्लिकेट करने के लिए होता है. एंड इफ यू आर नॉट गिविंग इनफ मॉक्स देन यू आर नॉट रेप्लिकेटिंग दैट इन्वायरमेंट इनफ नंबर ऑफ टाइम्स सो दैट यू गेट अक्वेंटेड विथ इट. मॉक्स देना सिर्फ तुम्हारे स्पोर्ट्स देखने के लिए नहीं होता, बट बहुत ज़्यादा तुम्हारी गलतियाँ भी तुम्हें पकड़ में आती है, तुम्हारे वीक स्पॉट्स भी पकड़ में आते हैं, एंड दैट इज़ वेरी मच एसेंशियल. सो आई वुड रिकमेंड, अगर तुम मेरे से कोई कोर्स चाहते हो, तुम टारगेट एटलीस्ट 50 मॉक्स, like inclusive of all Indore, Rohtak and JIPMAT total. Please ensure that by the time you're appearing for your exam, तुमने 50 मॉक्स इन टोटल दे रखे हो इन सारे एग्जाम्स का कंबाइन कर. द फोर्थ मिस्टेक कम्स फ्रॉम द थर्ड मिस्टेक इटसेल्फ, दैट इज नॉट एनालाइजिंग मॉक्स. बच्चे क्या करते हैं, मेरी टिप मान के मॉक दे देते हैं, बट मॉक एनालिसिस कौन करे यार. मॉक एनालिसिस तो बस वही होता है, देख लूँ मैं कि कौन कौन से आंसर्स गलत हुए, कौन कौन से बस मेरे से स्किप हो गए, बस उनके सोल्यूशन देख लो और आगे बढ़ो. नहीं, मॉक एनालिसिस इफ नॉट डन, इट्स अ वेस्टेड एफर्ट ऑफ योर 2 hours of mock.
मैं अभी से बता दूं, मॉक एनालिसिस का सिंपल सा रेशियो होता है 2:3 का. दैट सेज फॉर एवरी 2 आवर्स ऑफ मॉक गिवन यू शुड एनालाइज द मॉक फॉर 3 आवर्स. मॉक एनालिसिस कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या अप्रोच लेनी चाहिए, मैंने एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाई है. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पे भी दिख रही होगी. प्लीज इंश्योर दैट मॉक एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डे व्हेन यू स्टार्ट गिविंग मॉक. क्योंकि मॉक एनालिसिस वो एक सिंगल डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बिटवीन पीपल हु गेट सिलेक्टेड एंड पीपल हु डोंट गेट सिलेक्टेड. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फिफ्थ मिस्टेक दैट इज वेरी कॉमनली डन बाय ऑल आईपी मैट एस्पिरेंट्स इज दैट दे स्किप रिविजन्स. या रिविजन को उतनी तवज्जो नहीं देते. व्हाट दे फोकस ऑन इज कि मैंने एक मटेरियल कर दिया, अब मैं दूसरा मटेरियल करूँ, तीसरा मटेरियल करूँ. नो, प्लीज डोंट डू दैट. डोंट जंप ऑन बोर्ड्स, डिफरेंट बोर्ड्स. प्लीज इंश्योर कि अगर तुमने एक मटेरियल किया है उसको अच्छे से लगाओ, उसके बाद वापस से लगाओ, और उसके बाद वापस से एक और बार लगाओ. Ensure that you're doing the revision at least 2 to 3 times of the same material before appearing for that exam. You know, मुझे ब्रूस ली का वही कोट याद आता है, I don't fear a man who has practiced 10,000 kicks, but I fear a man who has practiced one kick 10,000 times. Be that man who practiced that one single material multiple times. प्लीज इंश्योर दैट अगर रिविजन को सीरियसली नहीं ले रहे हो, मैं ऑलवेज ये एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि 30,000 के अराउंड रफली बच्चे आईपी मैट के लिए अपीयर करते हैं, एंड आउट ऑफ दैट 29,000 of them you know have completed their syllabus. अब चाहे उनमें से कईयों ने 6 महीने पहले एग्जाम का सिलेबस खत्म किया हो या फिर एक रात पहले ऐसे पन्ने पलट के खत्म किया हो, बट what separates the top 1,000 from the other 29,000 is the number of revisions, the number of mocks, the number of mock analysis. mock analysis पे हमने बात की, बट रिविजन इज द इग्नोर्ड फैक्टर. अगर रिविजन पे ध्यान नहीं दोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें रिटेन नहीं होंगी. There is a forgetting curve and you'll forget everything before you reach the exam hall. And exam से जब 15 दिन पहले रिवाइज करने बैठोगे, you'll realize कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे वापस से पढ़ना पड़ेगा. And that is the most worst situation that you can find yourself in, कि यार एकदम blank हो exam से 15 दिन पहले. And that was it. That was all from my side. These were the 5 mistakes that I believe that every IP MAT aspirant should avoid. And if you were doing some of these, please make sure that you followed my advice and इसको correct करो जैसे मैंने वीडियो में बताया. And if you're not doing, please ensure कि आगे भी ऐसा ना हो. And I'm coming up soon with the entire full year strategy for IP MAT for both freshers who are managing 12th and especially for dropouts also, both partial and full. So make sure you like this video. 300 like का target रखते हैं. Once we reach that, I'll drop that 1 year preparation strategy video. तब तक के लिए see ya, bye bye, and see you at the campus soon.